A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, Indian economic development as well as macroeconomics. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters. We have solved these very number of numerical questions. We have studied different topics related to the Indian economic development as well as the macroeconomics. Okay. So in the last class we have completed a topic, we have completed a chapter, that is foreign exchange rate. Okay. Foreign exchange rate. Okay, so in this chapter we have studied what is foreign exchange, what is the foreign exchange rate, what are the different types of the foreign exchange rate system. So in which we have discussed the fixed exchange rate system, floating exchange rate system and the managed floating exchange rate system. Next topic we have discussed the what are the different causes for the change in the foreign exchange rate. So we have discussed the currency depreciation and the currency appreciation. Okay. After that we have discussed the what are the different causes for the depreciation and the appreciation. We have studied what is the foreign exchange market, what are the different functions of the foreign exchange market as well as the what are the different operations of the foreign exchange market, in which we have studied the spot market and the forward market. So we have completed again whole chapter of the foreign exchange rate. So in today's class we are going to study the chapter that is balance of payment. Okay. So in this chapter we are going to study the first of all what is the meaning of the balance of payment. Okay. हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? Meaning of BOP. In short, balance of payment is called BOP. Okay. Next we have to discuss the meaning of balance of payment accounting. Meaning of BOP accounting. Next we have to discuss the meaning of BOT, that is balance of trade. Meaning of balance of trade. So in which we have to study first of all meaning of the balance of trade. Next we have to discuss what is the difference between the balance of payment and balance of trade. Next topic that we are going to study is components of the BOP. So what are the different components, in which we have to study the current account, capital account. Current account and capital account, right? फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी BOP current account, BOP capital account. Next topic is meaning of autonomous and accommodating items. Okay, so meaning of autonomous and the accommodating items. Next topic is disequilibrium in the BOP. So this topic has been deleted from your syllabus due to COVID. So you no need to study what are the different disequilibrium in the BOP. The next and the last topic is balance of payment in accounting sense and operational sense. Okay, so this is all about your topic that we are going to study in this chapter. The first one is BOP, meaning of the BOP. Next one is meaning of the BOP accounting. Third topic is meaning of the balance of trade, in which we have to study what is the meaning of the balance of trade and the difference between the balance of
balance of payment and balance of trade. Next topic is components of the balance of payment, in which we have to study the what is component of current account, what is current account, what is capital account. Third topic in this, we have to study the what is the difference between the balance of payment current account, balance of payment capital account. Next topic that we are going to study is meaning of autonomous and accommodating items. So what are the different what are the different autonomous and the accommodating items? Next topic that we are going to study is, as I already told you, that you no need to study the what are the different causes for the disequilibrium in the balance of payment, because it has been deleted from your syllabus. So last topic is BOP in accounting and the operational sense. Okay, so one by one we are going to study all these topics. So let's get started. Okay, so balance of payment account are an important aspect of the study of the macroeconomics. So balance of payment क्या है, एक बहुत important aspect है किसको पढ़ने के लिए, अगर हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो मैक्रो इकोनॉमिक फेनोमेना कैन नॉट बी कन्फाइंड विद अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. हम मैक्रो इकोनॉमिक की अगर बात कर रहे हैं, हमको पता है मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, हम एज अ होल की बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल. तो हम उस इकोनॉमी में अपनी एक इकोनॉमी को कहीं एक एरिया तक कन्फाइंड नहीं कर सकते, एक एरिया तक उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं. ओपन इकोनॉमीज रिएक्ट सप्लाई टू द इवेंट दैट आर ऑकरिंग इन द ROW सेक्टर. ठीक है, ये जो ओपन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जैसे टू इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड. क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी मीन्स दैट इज देयर इज बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन डन. मतलब यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होगा, वो ओपन है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोज्ड इकोनॉमी, तो हम लोग क्या है, देयर इज नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. नहीं यहाँ पे कोई इंपोर्ट होगा, नहीं यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. बस वहीं अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ओवरसीज ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री. कि अगर हम लोग जब ओपन इकोनॉमी की बात करें, तो जब ट्रांजैक्शन करें तो वो ट्रांजैक्शन हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो द BOP अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. उस कंडीशन पे जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद द अदर कंट्रीज, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है. तो उस जगह पे हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं. सो एंड दे कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंट. और ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेशनल इनकम अकाउंट का. सो नेक्स्ट टॉपिक और द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. मीनिंग. Okay, so every government maintains a record of the transaction that takes place between the residents. ठीक है, हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, जो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन दी कंट्रीज हो रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो भी अपनी कंट्री जो रेसिडेंट्स में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो हर एक कंट्री क्या करती है, उसको मेंटेन
करती है अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी कोई भी रेसिडेंट एंड ROW दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है. सो दिस रिकॉर्ड इज नोन एज कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब इस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ठीक, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है which provides a systematic records of the all economic transaction. जो पूरी इकॉनमी में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है. ऐसा नहीं है कि वो एकदम मेस्ड होगा, कुछ भी रिकॉर्ड करके बस हमें बस दिखा देना है कि हमने बना लिया. उसका क्या है, सिस्टमैटिकली उसको रिकॉर्ड करना होता है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इट इज़ इसका डेफिनेशन क्या पता चला हमें, इसका पता चला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provide a systematic records of the all the economic transactions between the residents and the rest of the world at a given period of time. किसी period of time पे जो भी economic transaction हो रहा है residents और the rest of the world के साथ, उसको record करने को हम लोग क्या बोलते हैं, balance of payment, right? फिर कह रहा है कि economic transactions in the BOP. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बीओपी में, तो सबसे पहला है विजिबल आइटम्स और दी गुड्स. विजिबल आइटम और गुड्स. ठीक, तो कह रहा है कि दिस इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स. इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. ठीक है, द गुड्स विच वी कैन सी और टच, जिसको हम टच और देख सकते हैं, वो सारे गुड्स को हम लोग विजिबल आइटम्स और दी गुड्स में रिकॉर्ड करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड द विजिबल आइटम्स. इनको विजिबल आइटम्स बोला जाता है एज दे आर मेड ऑफ द सम मैटर और द मटेरियल, क्योंकि ये सारे क्या हैं विजिबल इसलिए क्योंकि ये कुछ मैटर और मटेरियल से बने होते हैं. एंड कैन बी सीन, टच और द मेजर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, एज वेल एज मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है इनविजिबल आइटम्स और द सर्विसेज. इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज. ठीक, सो इनविजिबल आइटम्स और द ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इसमें क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ठीक है, जितनी भी क्या है सर्विसेज हो रही हैं, जितनी भी सर्विस है उनका क्या होता है इसमें रिकॉर्ड होता है. जैसे सर्विसेज क्या होता है कि इंश्योरेंस की सर्विसेज कोई प्रोवाइड हो रही हैं, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, शिपिंग की कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल आइटम्स और दी सर्विसेज. Next one is unilateral transfer. Unilateral transfer. Unilateral transfer means कि one-sided transfer or one-sided payment. So unilateral transfer include receipt and the payment of gifts, donation, remittances and the other one-sided transactions. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी वन साइडेड पेमेंट होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि कुछ भी हम गिफ्ट ले रहे हैं या
डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, ओके। So in the capital transfer are related to the capital receipt। ये किससे होते हैं, capital receipt से होते हैं, that is borrowings on the sale of assets and the capital payment। जिसमें क्या होता है कि जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होते हैं उनको हम लेते हैं, जिसमें बोरोइंग्स होते हैं, जो भी हम बोरो कर रहे हैं, और जो भी सेल कर रहे हैं डिफरेंट असेट्स का, जिसमें असेट एंड लायबिलिटीज हमारी अफेक्ट हो रही हैं, एंड द कैपिटल पेमेंट्स, जो कैपिटल का हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती है इसमें, एंड पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यही दोनों इंक्लूड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, सो कैपिटल पेमेंट मीन्स कि हम परचेज, असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा है, पेमेंट करना पड़ा। तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन दी बीओपी जो इंक्लूड होते हैं वो 4 होते हैं। इन 4 में सबसे पहला है विजिबल आइटम्स और दी गुड्स। ठीक है, जिसमें विजिबल आइटम्स मीन्स जिसको हम वी कैन सी, मेजर एज वेल एज वी कैन टच, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो विजिबल आइटम्स और दी गुड्स हो गए। तो जितने भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका कर रहे हैं, जितने भी फिजिकल गुड्स हैं, जिसको फिजिकल गुड्स मीन्स कि जो किसी मैटर और मटेरियल से बने, उनका कोई भी गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना विजिबल आइटम हो गया। सेकेंड है आपका इनविजिबल आइटम्स और द सर्विसेज, जिसमें आता है आपका इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, मीन्स की जो भी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, लाइक शिपिंग फैसिलिटी हो गई, बैंकिंग, insurance and so on, these all are the services. So these are called invisible item or the services because we can't touch the services। हम services को टच और फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनविजिबल आइटम्स। थर्ड है आपका जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है बीओपी में, वो होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स कि वन साइडेड पेमेंट की, कोई भी वन साइडेड पेमेंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, या वन साइडेड पेमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, रिसीव और पेमेंट जो भी कर रहे हैं यूनिलैटरल में इंक्लूड होता है, लाइक डोनेशन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, रेमिटेंसेस दे रहे हैं, और भी अदर वन साइडेड जो भी पेमेंट कर रहे हैं। लास्ट है आपका कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में इंक्लूड होते हैं आपके कैपिटल रिसिप्ट और द कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट मीन कि जो भी हम रिसीव कर रहे हैं मनी, तो उसमें क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, बोरोइंग्स कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं अपने असेट्स का, तो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल पेमेंट मीन्स कि हम कोई भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, एज वेल एज लोन का रीपे कर रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, कैपिटल पेमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ दी बीओपी अकाउंटिंग। बीओपी अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। Of BOP अकाउंटिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होती है बीओपी अकाउंटिंग की। सो द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन द डबल एंट्री बुक। ठीक है, जो बीओपी अकाउंटिंग होती है वो किस में होती है, डबल एंट्री बुक में, डबल एंट्री बुक में। ठीक है, तो जो भी हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं बीओपी अकाउंटिंग, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डबल एंट्री बुक में होगा। एंड कीपिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको हम डबल एंट्री बुक में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। द बीओपी अकाउंटिंग मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है, अगर हम लोग ये जो डबल एंट्री मीन्स की डबल साइड उसका क्या करना, एंट्री करना, तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड लेते हैं हम, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम लेते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि
and the total amount of debit must be equal to the total amount of credit. ठीक है, जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू दी क्रेडिट साइड. ठीक है, जो भी हम डेबिट कर रहे हैं और जो भी हम क्रेडिट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए. द बैलेंसिंग आइटम एरर एंड ओमिशंस मस्ट बी इंक्लूडेड टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट. ठीक है, और बैलेंसिंग आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं एरर्स एंड द ओमिशंस, एरर्स एंड ओमिशंस, उसको भी क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए. क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर इन केस डेबिट क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं हो रहा है तो हम एरर एंड ओमिशंस में जितना भी डिफरेंस हो रहा है उसको इसमें एंट्री करके दोनों को साइड को इक्वल कर देंगे. फिर कह रहा है इफ बीओपी अकाउंट इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड, मतलब एरर एंड ओमिशन को एंटर करने के बाद भी, मतलब जितना भी एरर एंड ओमिशन हमें याद आया, लगा कि हाँ यहाँ पे इतना डिफरेंस हो सकता है, उसके बाद भी ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है, इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं. ठीक है, उस कंडीशन पे हम करते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. ठीक है, थ्रू दी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं, डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करते हैं. राइट, ये हो गया आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड, so balance of trade refers to the difference between the value of export and value of import of the visible items only. ठीक है, अगर हम लोग बीओटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स minus value of import of goods. राइट, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली. हियर वी विल नॉट इंक्लूड द सर्विसेज. अगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करना होता है तो इस कंडीशन में हम लोग सर्विसेज को नहीं लेते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट दी गुड्स. ओके, विजिबल गुड्स, जो भी जितने भी विजिबल गुड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड. फिर कह रहा है कि एक्सपोर्ट आर एंटर्ड एज द क्रेडिट साइड आइटम इन द बीओपी अकाउंट एज इट इज करस्पॉन्ड्स टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, एक्सपोर्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज दिस इज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. राइट, एक्सचेंज. ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स के, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज इट इज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट. इंपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, बिकॉज इट इज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, क्या हुआ, एक्सपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, अपने गुड्स को हम बाहर भेज रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, रिटर्न में फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है. मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है.
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इम्पोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ गुड्स को मंगा रहे हैं, तो हम बाहर फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ की कंट्री की जो करेंसी है वो वापस जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वो क्या है, बस एक बीओपी का पार्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारी चीजें लेते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर और द कैपिटल ट्रांसफर। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या लेते हैं, बस विजिबल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ फेवरेबल व्हेन एक्सपोर्ट आर मोर देन द इंपोर्ट एंड अनफेवरेबल व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। देखिए, जब ये बीओपी अकाउंट क्या होता है, ये फेवरेबल तब होता है जब आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट is more than the import। ठीक है, जब एक्सपोर्ट क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है इंपोर्ट से, दिस सिचुएशन इज फेवरेबल। ये सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। एंड व्हेन इंपोर्ट इज more than export, this is unfavorable। क्योंकि अगर कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा हो जा रहा है, मतलब हमारी कंट्री से पैसा ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, ठीक है, पैसा ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। जब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज क्या होंगी कि आएंगी ज्यादा बाहर, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन, वो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा सिचुएशन होता है। सो व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट, इट इज द फेवरेबल कंडीशन। व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, इट इज द अनफेवरेबल कंडीशन। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स और द ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ द विजिबल आइटम्स, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस विजिबल आइटम्स को लेते हैं, और दी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स एंड ट्रेड बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग दोनों ही बोलते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स और दी ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, जैसे एक इसमें क्वेश्चन भी दे रहा है, अ कंट्री एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹2600 करोड़, ठीक है। कोई कंट्री है वो क्या करी है, गुड्स को एक्सपोर्ट करी है, जिसका कितना कॉस्ट है, 2600 करोड़ कॉस्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड इट्स इम्पोर्ट अमाउंटेड इन 1700 करोड़, और इम्पोर्ट कितना करिए, 1700 करिए। सो कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द बीओटी एंड डिस्कस इट्स नेचर, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, देखिए दे रहा है, हम लोग को बीओटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीओटी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स minus value of import of goods, right। तो कितना हो गया, कितना दिया एक्सपोर्ट, 2600 माइनस कितना दिया है, रुपीज करोड़, 1700 rupees 1700 crore, so it will be rupees 900 crore। और इसमें कह रहा है कि डिस्कस इट्स नेचर, इसका नेचर हमको एक्सप्लेन करना है। तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से, सो दिस इज द फेवरेबल नेचर। ये क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल इसलिए है बिकॉज एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट क्या है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है, इसलिए क्या है ये फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है,